So hello and welcome back class into the next video of your science chapter. I was teaching about class 7th science, and it was 7th chapter of your science subject, which is weather, climate and adaptations. Okay, so we have already discussed the two classes. The first one was about weather and climate. Then the second class was about climate and adaptation, in which we have discussed about polar bear. Okay, it means we have discussed about the snowfall region or the polar region. Okay, similarly in this class we will discuss about tropical rainforest, and this will be the last video of our chapter. Without wasting any time, moving forward to our next topic. So our next topic will be the first part was polar regions. Now second part is tropical rainforest. Tropical rainforest. So we have to discuss first what is actually tropical rainforest, what type of condition is there, and then the animals living in tropical rainforest condition and about their adaptation also. So moving forward to the first point, which is about tropical rainforest. What type of climate is there? So tropical rainforest have generally hot climate, and as well as the day and night are equally almost equal throughout the year. In winters the temperature goes down to about 15 degrees Celsius, and in summer it is very hot. I mean, you can say temperature go above 40 degrees Celsius. Okay, so moving forward to the first point about tropical rainforest. So write down, it has generally hot climate. So tropical rainforest has generally hot climate. Second point, in summers the temperature goes above 40 degrees Celsius, and in winters it goes down to 15 degrees Celsius. I hope it is clear to you. It has generally hot climate. It means वहाँ पे hot climate होता है. ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरियाज में हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन ऑलमोस्ट होता है. सो जनरली हॉट क्लाइमेट. ओके, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट होगा, यानी कि नॉर्मली द हॉट सिचुएशन इज देयर, टेम्परेचर इज हॉट. सेकेंड पॉइंट, in summers temperature goes above 40 डिग्री सेल्सियस. हमारा भी यही कंडीशन है. हमारे यहाँ भी समर्स में टेम्परेचर 40 से अबव जाता है, एंड विंटर्स में इट गोज डाउन ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देयर इज वन मोर पॉइंट, द डे एंड नाइट. The day and night are almost equal in time. तो डे एंड नाइट का जो टाइम होगा वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इक्वल होता है. ऑलमोस्ट इक्वल इन टाइम थ्रू आउट द ईयर. राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. थ्रू आउट द ईयर, दिस इज द point. Yeah.
So this was all about rainforest, tropical rainforest. Moving forward, we will discuss some more points about rainforest. Note it down. So in India, tropical rainforest areas are there. So where are they? So it is near Assam as well as in Western Ghats. Okay. In other countries also have similar regions, which I am going to discuss in this point. Note it down. In India capital, okay, because it is a name. In India such regions, ऐसे regions कहाँ पे हैं इंडिया में? Such regions are in Western Ghats and Assam. Also some more places has tropical rainforest. और भी places पे rainforest हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर है. Tropical rainforest like Central America, Central Africa, and also in Asia, Southeast. It is in Southeast Asia, yeah. Southeast Asia, etc. There are some more reasons, but this is enough according to your book. Okay, so I am talking about the places. कहाँ पे ऐसे जगह हैं. So हमारे कंट्री के बारे में बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में, ओके, एज वेल एज असम में. और दूसरे प्लेसेस की बात करें आउट ऑफ इंडिया, देन इट इज़ इन सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न एशिया. देर आर सम मोर places also, but these are important ones. Note it down. So the next point about tropical rainforest. So next point, first of all मैं आपको समझा दूँ next point है क्या. So in next point I am trying to say that, as you know, because the temperature is very good for adaptation, rain is very heavy out there, so water is enough. If water is enough, then plants and fruits will be enough. It means a variety of animals will live there. Okay, so write this, then I will explain this one. Since a variety of animals live here means tropical rainforest. Okay, here का मतलब tropical rainforest की बात कर रहा हूँ. Since a variety of animals live here, the competition for food is very intense. कहने का मतलब, all I want to say is, variety of animals हैं tropical rainforest में,
तो कंपटीशन फॉर फूड बहुत इंटेंस होगा। इट मीन्स कि फूड के लिए जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी इंटेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, दैट्स माय पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, not only food, also for shelter is very intense. Competition for food, note it down, it will be shelter also, food and shelter. Shelter also will be there, shelter, food and shelter. Now next point, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज़ में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स अपने आप को बहुत ही हाई लेवल पे खुद को अडेप्ट करना सीख जाते हैं। इवन द फ्रॉग्स को जानते होगे आप, वो नॉर्मली किसी वॉल के ऊपर नहीं चढ़ पाते, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पाम्स अलग तरह से अडेप्ट हो चुके हैं, तो वो आराम से किसी भी पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाते हैं एंड वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। ओके, सो आई विल डिस्कस अबाउट दिस। सो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट, बिकॉज ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो प्लांट्स एंड ट्रीज जो होंगे ऐसे एरियाज़ में वो बहुत ही बड़े नंबर में प्रेजेंट होंगे, तो ज़्यादातर एनिमल्स ट्रीज पे ही रहेंगे एंड प्लांट्स पे ही रहेंगे। ओके, सो नोट दिस पॉइंट। most of the animals lives on trees, even the frogs। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज़ पे ही रहते हैं। इवन द फ्रॉग्स, मतलब कि फ्रॉग्स भी नॉर्मली जो हमारे एरियाज़ में आप फ्रॉग्स को देखोगे वो कभी भी हायर एरियाज़ पे नहीं रहते हैं, वो हमेशा पानी के पास रहते हैं। बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो फ्रॉग्स होते हैं वो ट्रीज़ पे भी रहते हैं, वो उन्होंने खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है। राइट दिस पॉइंट्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Now this was about tropical rainforest. Next point, so one by one we have discussed the conditions, कैसे conditions हैं वहाँ पे। वन बाय वन 2-3 एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, वो खुद को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉकन। ओके, सो टॉकन पोजेस, नोट दिस पॉइंट, टॉकन possesses, spelling is good, right. Toucan possesses a long, large beak. Beak means चोंच। ओके, जो पक्षी के पास चोंच होता है, टॉकन के पास ये चोंच काफ़ी बड़ा होता है, एक लार्ज साइज का होता है, ठीक है, बैक। दैट हेल्प्स इट टू रीच out the fruits on the long branches। तो नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो नहीं खा पाते। ओके, बट टॉकन एक ऐसा बर्ड है, आप अपने बुक के डायग्राम में देखो, टॉकन का डायग्राम बना हुआ है। सो टॉकन एक ऐसा बर्ड है दैट जो कि अपने लॉन्ग बेक से, ओके, बेक मीन्स चोंच, अपने लॉन्ग बेक से उन फ्रूट्स तक भी पहुंच जाता है वो जो कि उनसे काफ़ी दूर होते हैं, बिकॉज उनका बेक जो होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट अबाउट टॉकन।
Now next point. Many animals have sensitive hearing, मीन्स उनके सुनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है. शार्प आईसाइट, आँख काफ़ी तेज होता है. शार्प आईसाइट मीन्स आँख काफ़ी तेज होता है. थिक स्किन मीन्स अगर स्किन मोटी होगी तो दूसरे एनिमल्स उसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे. ओके. एंड एडॉप्टिंग स्किन कलर, और स्किन कलर भी एडॉप्टिंग होता है. जैसे कि फ्रॉग्स, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, एडॉप्टिंग स्किन कलर, उनका स्किन कलर भी एडॉप्टिंग होता है. मीन्स अपने इन्वायरमेंट के कारण के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे कि आपने ग्रीन स्नेक्स देखा होगा जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जो कि सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो रेन फॉरेस्ट. सिमिलरली आपने ग्रीन फ्रॉग्स भी देखा होगा जो कि लीव्स के ऊपर रहते हैं. ग्रीन स्नेक्स होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं. एंड ऐसे एनिमल्स ईजिली नज़र नहीं आते हैं. ऐसे और भी एग्जांपल हैं जैसे लिजर्ड, ओके, गिरगिट, जो कि अडेप्ट कर लेती है खुद को अपने इन्वायरमेंट के कलर से. ओके, सो वन बाय वन सेंसिटिव हियरिंग. सो सेंसिटिव हियरिंग मीन्स many animals have sensitive hearing. For example, you can say lions, dogs. So these animals have sensitive hearing. तो इनसे ये आसानी से प्रोटेक्टेड रहते हैं दूसरे एनिमल्स से, एज वेल एज ये दूसरे एनिमल्स का हंट भी बहुत ईजिली करते हैं. शार्प आइज मीन्स ईगल्स का आइज काफ़ी शार्प होता है. पैरोट्स के आइज़ काफ़ी शार्प होते हैं. ठीक है, वो दूर से दूर के चीज़ों को इजीली देख सकते हैं. थिक स्किन, टाइगर्स के पास थिक स्किन होता है, दूसरे एनिमल्स उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. एलिफेंट के पास भी थिक स्किन होता है, तो दूसरे एनिमल्स उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. एडॉप्टिंग कलर मैंने बताया, स्नेक्स, फ्रॉग्स या लिजर्ड वगैरह. ओके, सो दिस वॉज द पॉइंट, नोट इट डाउन. नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड. सो वन मोर एनिमल विच इज़ लॉयन टेल्ड मैकाक. ओके, तो ये एक तरह का बंदर होता है. ओके, लॉयन टेल्ड मकाक. अपने बुक में उसकी फिगर आप देख सकते हो, ये चिंपैंजीज का के प्रजाति का ही है. सो नोट इट डाउन. लॉयन टेल्ड मकाक. Yeah. Lion-tailed macaque has silver white hair around its neck. सिल्वर वाइट हेयर होता है वो उसके नेक के चारों तरफ. So this is an adapting feature of lion-tailed macaque. Okay, so lion-tailed macaque is a name of animal. Okay, you can watch it on your books. So it is a feature, इसीलिए मैंने इसको लिखवाया. Now next point. Next point is about elephant. Note it down. Elephant is also an important animal
of tropical rainforest. Tropical rainforest. Which adopts it according to the conditions. सो एलिफेंट एक इम्पॉर्टेंट रेन फॉरेस्ट का एनिमल है, ओके, जो कि अपने आप को अडॉप्ट करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, दिस वाज माय पॉइंट। नाउ ऑल आई वांट टू से इज़ अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इसके पास स्मेल करने का जो फीचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ईजिली किसी चीज़ को स्मेल कर लेता है। एज वेल एज इसके जो टीथ होते हैं, एलिफेंट के टीथ, वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं, जो कि हार्ड से हार्ड चीज़ों को बहुत ईजिली ये चबा जाते हैं। तो इनका फेवरेट फूड होता है बार्क्स ऑफ ट्रीज़, यानी कि जो पेड़ के छाल होते हैं वो इनको बहुत पसंद होते हैं। तो ये पेड़ के छाल को अपने दांतों से बहुत ईजिली ग्रैब कर लेते हैं एंड उन्हें खाते हैं। सो नोट इट डाउन। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। Some more thing about this, I am erasing this one. It has small smelling power. उसी में कंटिन्यू करेंगे। as well as well designed teeth which helps it to eat barks of trees. So this was about elephant, जिसे कि बार्क्स ऑफ ट्रीज खाना काफ़ी पसंद है एंड इसीलिए इसके टीथ काफ़ी अच्छे होते हैं। सो नोट इट डाउन नो। So this was all about our chapter, which was weather, climate and adaptation. So this chapter is finished. Now you have to make your notes very well and then you have to do question answers from your exercise. Okay, thank you class.